The need to impose greater parliamentary control over companies' affairs increased during the decade 1773 to 1853 after Plassey elucidate. So this question is purely about why so many acts were passed one after the other. What was the fundamental reason behind it? The fundamental reason was few. Like number one, lots of corruption was there. This company was not governed well. These people used to go for private trade, which was not allowed, but still they were doing so. Then as per the requirements of the time, certain changes were done. Like in 1813, the ideas of utilitarian had become very important. That's why the monopoly over trade was broken. तो हर एक्ट के लिए कुछ स्पेसिफिक इंसिडेंट्स भी है, बट ओवरऑल भी रिक्वायरमेंट है. रिक्वायरमेंट वही है, करप्शन की है. द कंपनी वाज बिकमिंग वेरी प्रोमिनेंट बिकॉज लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया वाज अंडर देयर कंट्रोल. सो कीपिंग द ज्वेल इन द क्राउन वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स वाई parliamentary control was required over the affairs of the company. Creation of board of control, etc. was just a part of it. The Battle of Plassey led so to strong foothold of the company over Bengal, thereby creating efficient parliamentary control for battle and administration. So here we can see imposition of greater. So regulating act was the first one. When regulating act came, the company was very close to bankruptcy. It applied for a loan of more than £1 million, and then eventually they were said that this will be only released if you accept this act. So this act was accepted. तो वो थोड़ा सा इसमें टॉपर ने ये चीज़ एक दो चीज़ें मिसिंग कर दी हैं, तो आप इसको लिखना है, फिर एक दो प्रोविज़न लिखना है, बिकॉज इस क्वेश्चन में आपने प्रोविज़न नहीं पूछे हैं. उसका बस ये रीज़न है कि भाई ये एक्ट आए क्यों एक के बाद. एक जो यूबिक्विटस रिक्वायरमेंट था दैट द चार्टर्स वर गिवन फॉर अ डिफाइंड डेट 20 ईयर्स के आसपास, 10 ईयर्स के आसपास दे देते. दैट्स वाई द चार्टर्स केम रेगुलरली. पिट्स इंडिया एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हैड लॉस्ट वन एम्पायर. द अमेरिका वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट कंट्री बाय 1783. And that's why Pitt's India Act was passed, so that they can solidify the foundations of the second empire, which was now created, which was in the full flow. तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ मिसिंग है in the answer writing, which should be bridged. यहाँ पे the influence of यहाँ पे उन्होंने mention किया हुआ free traders, evangelicals, the monopoly trade or was abolished, and this made a controlling big affair. 1833, then the requirement was the company has become so big, it should be created into a purely administrative body. There was no requirement for it to do commerce, so that's why 1833 it was done. And thereafter 1853, in 1853 no specific time period was given. The demand for the simultaneous examination was going on. Okay, the demand for the Indians becoming part of admission was going on. That's why the act was passed later on, and even the time period was not defined, and that's why when revolt happened the company was abolished itself. इस वाले क्वेश्चन में द फोकस शुड बी ऑन द रीजनिंग व्हाई सो मेनी एक्ट्स केम वन आफ्टर द अदर. सम आर द लॉन्ग टर्म फैक्टर्स एंड सम आर द शॉर्ट टर्म फैक्टर इमीडिएटली बिफोर द एक्ट. तो उस तरीके से अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा आंसर बनेगा. लाइक वी सी लॉन्ग टर्म फैक्टर्स and immediate factors. We can further improve the structure of this answer. Here you can write about corruption in the administration, reduce that. Okay. Second, you can mention about India being a jewel in the crown. The area was coming under its control. Third, pursuing the policy of imperialism. These were the long term factors. Short term, हर एक्ट से पहले क्या सिचुएशन है वो आपने मेंशन करनी है. 1773, 1784, you can even mention about 93, 1813, 1833, 1853. So immediate, what was the challenges just before the act? That can also be mentioned. This is how you can improve the structure of this answer. Conclusion, these processes finally led to culmination of direct crown in India after the revolt of 1857, 1858. So that is an okay kind of Hi, welcome to Prep Career IAS. Today I am here with a very important announcement. We are starting a brand new batch of History Optional Foundation. So if you are somebody who is looking for history as an optional, तो थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हिस्ट्री से फ़ायदा क्या होता है, कितने मार्क्स आते हैं, टॉपर्स कितने निकलते हैं, एंड देन इफ़ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस then you can join our institute. चलिए बात करते हैं. So the program will start from 23rd of July.
इफ़ यू सी फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स, ओके, हर साल टॉपर्स के 300 या उसके आसपास मार्क्स रहे हैं. इन 2018 आई वाज एबल टू गेट 324 मार्क्स एंड विद द पीरियड ऑफ टाइम वी हैव प्रोड्यूस्ड लार्ज नंबर ऑफ टॉपर्स. अगर आप देखोगे 17 में 316, 18, 19, 20, 21 एज वेल एज 22, एवरी ईयर people are getting around 300 or more than 300 marks. उसके आसपास आ ही जाता है. In fact, the topper of 2023, she also got more than 300 marks. So it's a specific optional where you get good marks. Plus, what's the significance of history optional? देखो आपके GS में बहुत हेल्प करता है. प्रीलिम्स में कभी 10 से 20 के बीच में क्वेश्चंस आते हैं, तो 20 से लेकर 40 मार्क्स तक मैक्सिमम आपका यहाँ से हो सकता है डायरेक्टली. GS1 में 100 मार्क्स के आसपास, GS2 में 50 एंड GS3 में 25 मार्क. लैंड रिफॉर्म्स वगैरह वाले जितने भी टॉपिक्स हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के, वो सारे हिस्ट्री ऑप्शनल से ही डायरेक्टली लिंक्ड है. सो इफ़ यू आर थिंकिंग फॉर अ स्ट्रेटेजिक ऑप्शनल जो थोड़ा सेफ भी रहे और जिसमें मार्क्स भी एक अच्छे लेवल तक आ जाए पढ़ाई करके, तो हिस्ट्री इज़ अ वेरी गुड ऑप्शनल. विथ रिस्पेक्ट टू आवर क्लासेस, ओके, इफ़ यू सी आवर मेथोडोलॉजी इज़ अ बिट यूनिक. व्हाट डू वी फोकस अपॉन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी गिव सम स्पेसिफिक क्लासेस विच आर कंसेप्ट ओरिएंटेड, कि भाई आप बेसिक चीज़ें समझो. हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, जैसे मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था. सो यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ हैंड होल्डिंग इन द बिगिनिंग. तो वो हम सबसे स्टार्ट में आपको कुछ बेसिक NCERT क्लासेस देंगे. Then we'll go towards the core classes. These core classes are going to focus specifically on the topics of the history optional. And जो जितने भी topics हैं सब के ऊपर आपको अच्छे notes मिलेंगे. And side by side our classes are going to incorporate all the PYQs. जितने भी PYQs हैं सबको incorporate कर लेंगे. आपका एक अच्छा डेडिकेटेड रिवीजन टाइम मिलेगा शेड्यूल के साथ में. कंटिन्यूस असेसमेंट भी की जाती है कि हर 14 दिन के अंदर आपको एक टेस्ट देना है. इफ़ यू आर एबल टू गेट गुड मार्क्स इन द टेस्ट, इफ़ यू आर एबल टू डू दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस, यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि आपका अच्छे मार्क्स UPSC में भी आ जाएंगे. बट फॉर दैट यू हैव टू बी रेगुलर. एंड वो अच्छी हैबिट इनकलकेट करने के लिए हमने ये स्पेसिफिक प्रोसेस बनाया. एंड फाइनली होलिस्टिक मेंटरशिप, नॉट जस्ट फॉर ऑप्शनल, फॉर ऑल द पार्ट ऑफ जनरल स्टडीज ऑल्सो. एनी काइंड ऑफ डाउट यू हैव विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर, हाउ टू क्लियर प्रीलिम्स, हाउ टू क्लियर मेन्स, हाउ टू get maximum marks in the interview, all those things we focus on at Prep Career IAS. So once you are becoming part of this foundation course, it's not just about optional, it's also about your overall rank in the specific civil services itself. तो सारी चीज़ों पे हम फोकस करते हैं. देन अगर क्वांटिटेटिवली बात करोगे तो लगभग 150 प्लस सेशंस हो जाते हैं, 90 प्लस हमारी कोर कंसेप्ट क्लासेस रहती हैं, 40 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन हो जाते हैं क्लास के अंदर. एंड फाइनली जो आपको कुछ वैल्यू एडेड डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं टू मेक यू एट ईज विद द हिस्ट्री ऑप्शनल. क्यों? बिकॉज देखो कभी होता है कि प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन दे दिया आपको, ठीक है, साइड बाय साइड इंपॉर्टेंट मैप की जो साइट्स वगैरह उनकी कंपाइलेशन दे. तो ऐसे करके जितना भी एनालिसिस चाहिए होता है इस ऑप्शनल के लिए, उन सबको हमने डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में ऑलरेडी बना के रखा हुआ है. सो दैट हूएवर जॉइन्स दिस, उनको हम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं ताकि आपके पास शुरुआत से ही एज रहे. और एज जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है. सो दिस इज़ अबाउट द क्वान्टिटेटिव. देन टेस्ट मिल जाते हैं आपको, 14-15 टेस्ट मिल जाते हैं ओवरऑल मिला के. देन वेबिनार्स होंगे मेरे साथ में, क्रिस्प हैंडआउट है, एंड मेंटरशिप सेशन तो साथ में चलते ही रहेंगे. इन 22 वी वर एबल टू गेट अ वेरी गुड रिजल्ट इन हिस्ट्री ऑप्शनल एंड यू कैन ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ दिस. एंड दिस लेगेसी गोज अ लॉन्ग बैक. 2022 में बहुत अच्छे मार्क्स थे, 21 में इनफैक्ट द रैंक 1 शी वाज फ्रॉम आर टेस्ट सीरीज. सो इफ़ वी स्टडी वेल, इफ़ वी डेडिकेट आवरसेल्फ टू दिस ऑप्शनल कैन गिव यू वेरी गुड रिवॉर्ड. एंड हमारे साथ प्रिपेयर करोगे तो किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आई माई सेल्फ बीन एन ऑफिसर, आई माई सेल्फ बीन एन एस्पिरेंट ऑफ स्टडिंग विद दिस ऑप्शनल. मैंने हर चीज़ देखी है. एंड माई एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 12 years टेल्स मी ओनली वन थिंग, दैट इफ़ यू आर स्ट्रेटेजिक, इफ़ यू आर मेथोडोलॉजिकल एंड इफ़ यू फोकस ऑन द राइट एरियाज, you can get very quick result. But yes, you have to be dedicated from your side. So if you are somebody with energy, somebody with dedication, become a part of this. 23rd जुलाई से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं एंड आपको अच्छे तरीके से मेंटर करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे. एंड दिस इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू क्रिएट अ वेरी गुड सिनर्जी बिटवीन अस एंड आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी विद रिस्पेक्ट टू दिस, मार्कशीट वगैरह भी अगर आप देखोगे तो यू कैन सी इवन माई मार्कशीट, यू कैन सी आई गॉट 324 मार्क्स हियर. You can call on these numbers. These are the numbers through which you can get connected to our counselors. और counselors के through जितने भी queries हैं with respect to this program, you can eventually solve them out. आप offline visit भी कर सकते हैं in ORN, उसका भी एड्रेस वगैरह आपको वो सेंड कर देंगे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट.